Yes, good morning all. So today we are going to study about the calculation of errors. So yesterday we have discussed about different type of errors. We have discussed about systematic errors, we have discussed about constant errors, random errors, least count errors, right? So today we are going to discuss that how these errors can be rectified when we are using them in any equation. How to change the erroneous value and put it correctly and give the true value of any measurement, right? So in the calculation of errors we have 5 categories, right? So in the calculation of errors we have 5 categories, namely absolute error, relative error and percentage error. These are the main errors. So I'll discuss all of them one by one. Right. So first of all, suppose there is a calculation and I have given you some experiment and you have taken 5 to 6 values. Suppose those values are say A1, A2, A3, A4 up to dash 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 up to AN. Yes, there are n readings you have taken. You have taken 10 readings. Someone has taken 12 readings. Someone has taken 15 readings. Someone has only taken 7 readings. So let us say A1, A2, A3 कितना readings लिया किसी ने भी, a particular student has taken n readings, right? Now in maths you have already studied about arithmetic mean. So first of all जितने भी आपने readings लिए you have to take its mean, right? यू हैव टू टेक इट्स मीन. लेकिन मीन लेने से सारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. मीन को आगे ट्रीट करना है प्रॉपरली और फिर हमें फाइनल आंसर देना है. जो हमारी मिस्टेक हुई थी उस मिस्टेक को ठीक करना है, राइट? सो वी हैव टेकन एन वैल्यूज. हाउ टू फाइंड मीन और एवरेज? एवरेज और मीन हाउ डू वी फाइंड? लेट अस से एवरेज इज AM. A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू प्लस AN डिवाइडिंग बाय n. First step is to find the mean, right? Now we will find the absolute error. Absolute error मतलब हर एक वैल्यू में सबका मीन हमने निकाल लिया 10, लेकिन बहुत सारी जो हमने वैल्यूज दी थी, किसी का 9 होगा आंसर, किसी का 11 होगा, किसी का 7 होगा, किसी का 12 होगा. सो हर एक जितनी भी हमने वैल्यूज लिए वो सब वैल्यूज में एब्सोल्यूट एरर सबकी क्या है? That will be given by absolute error is the difference between the mean value and the individual error. That is absolute error in A1 is mean minus A1. Absolute error in A2. Let us say error है तो हमने इसको delta दे दिया. Delta means it is error. Delta in this chapter for error concept means error, the mistake in the value, right? Second will be mean minus A2. Similarly, error in nth value will be mean minus AN, right? This is absolute error in first reading. This is absolute error in second reading. Next will be absolute error in third reading and so on. This is absolute error in nth रीडिंग. दैट इज हाउ वी फाइंड द एब्सोल्यूट एरर. और एरर में जब हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज वाइज या मैग्नीट्यूड हम देखते हैं. एरर नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, एरर पॉजिटिव डायरेक्शन में भी होता है, राइट? तो हम ये नहीं देखेंगे कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव. वी ओनली फाइंड कि कितना परसेंट मतलब कितना एक्स्ट्रा हुआ, भले ही वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में. सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स, राइट? वी विल टेक द magnitude of all the absolute errors and find out mean absolute error, right? So let us name mean absolute error as delta A bar. Delta A bar. First value जो निकला था magnitude of delta A1, second का mode, magnitude of, you know magnitude में negative value भी होगा तो वो क्या हो जाएगा? Positive हो जाएगा. Plus magnitude of value A3 प्लस अप टू हाउ मच? मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू ऑफ AN. सबका मैंने क्या ले लिया? मॉड्यूलस ले लिया या सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया. मतलब माइनस वैल्यू है तो सबका सब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस ही रहेगा. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स n. इसका वैल्यू ये जो निकला मिस्टेक, ये मिस्टेक, ये मिस्टेक, ऑल द मिस्टेक्स सबका मोड वैल्यू एंड डिवाइडिंग बाय n अगेन विल बी द मीन एब्सोल्यूट एरर. ये सब जो एरर्स थे मीन में से जो माइनस किया था इनको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर्स.
Mean absolute errors means taking the modulus of all of them and then finding the mean of all the absolute errors, right? Then we come to the relative error or fractional error. रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर इज द फ्रैक्शनल, मतलब द रिलेटिव, ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय डेल्टा ए एम, फ्रैक्शनल एरर इज डेल्टा ए बार, जो भी वैल्यू आया है डिवाइडेड बाय द मीन वैल्यू। मतलब अगर हमने कहा कि ये जो भी हमारा मीन आया था, सपोज 10 आया था और मीन एब्सोल्यूट कितना आया 2, तो 2/10 मतलब 10 वैल्यू में 2 एरर है, एंड परसेंटेज एरर विल बी सिंपली मल्टीप्लाइंग दिस फ्रैक्शनल एरर बाय 100%। परसेंटेज एरर इज गिवन बाय फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100%। अभी 2/10 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो कितना हो जाएगा 20%। 2 in 10 का क्या मतलब है? 2 in 10 का मतलब वैसे भी क्या आता है, परसेंटेज में देखो तो कितना आता है, 20% आता है। सो व्हाट इज परसेंटेज एरर? परसेंटेज एरर का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, ये जो फ्रैक्शनल एरर निकला डेल्टा ए बार अपॉन ए एम इंटू 100%, ये हमने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, एंड दैट इज हाउ वी सॉल्व, वी कैलकुलेट ऑल द एरर्स, right? So we'll quickly recall, right? हमारे पास n वैल्यूज हैं, those who have joined late, हमारे पास 10 वैल्यूज हैं, 20 वैल्यूज हैं, 30 वैल्यूज हैं, n वैल्यूज हैं, right? वैल्यूज क्या क्या है, a1, a2, a3, a4 अप टू an। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, सबको ऐड करके नंबर ऑफ कैलकुलेशन से, नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट द एवरेज और मीन। उसके बाद हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मीन में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करो, मीन में से सेकंड वैल्यू को, मीन में से थर्ड वैल्यू को, इसी तरह से मीन में से nth वैल्यू को। ये सब जो आई हैं ये सब क्या कहलाती हैं, एब्सोल्यूट एरर्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो एब्सोल्यूट एरर्स आई, भले ही पॉजिटिव हो, भले ही नेगेटिव हो, भले ही जीरो हो, हमें सबका क्या लेना है, मॉड्यूलस लेना है, वैल्यू लेना है। पॉजिटिव मतलब मॉड्यूलस मींस ऑल द एरर्स इन पॉजिटिव ओनली, नेगेटिव है तो वो भी, उसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, पॉजिटिव। सो सबका मॉड्यूलस लेंगे और फिर से डिवाइड कर देंगे n से, इसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर हम मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन से डिवाइड करते हैं तो ये जो फ्रैक्शन होता है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर, और इस फ्रैक्शनल एरर को जब हम 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है परसेंटेज एरर। इज दैट क्लियर? Now we will solve a numerical based on how to calculate the error. The question says that the length of the rod is 2.48, 2.46, 2.49, 2.50 and 2.48. These values are given. You are supposed to find the absolute error in each value, percentage error and the average length of the rod. Your answer is going to be the average length of the rod. Average length of the rod doesn't means the mean you have taken, right? So how to solve? First of all, we will take the mean of all of them. We will add all of them and divide it by 5. And here we have got the value as 2.482, which is rounded off to 2.48 meters, right? Now we will find the absolute error subtracting all individual errors from the mean value. So what is the mean value? 2.48. Error in first is 2.48 minus 2.48, mean minus second, mean minus third, mean minus fourth and so on. All these values are the absolute error in each value which is asked in the question. So ये हमारे 5 answers हैं यहाँ पे, absolute error in each values. These 5 are our answers. Then we have to find the mean absolute error. ये जो भी values है, positive है, negative है, zero है, सबका क्या लेना है, मॉड्यूलस लेना है या मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ, right? Positive value divided by the number of calculations, that is 5. So we will do 0.05, इसको ऐड करके आया, divided by 5, that is 0.01. ये क्या है, ये हमारी mean absolute error है, right? So what is our answer? What is asked in the question? Average length. Average length कितना है? 2.48 प्लस माइनस 0.01 मीटर, ये हमारा आंसर है, ये हमारी एवरेज लेंथ है।
वी ऑलवेज राइट इट इन दिस टर्म, हम हमेशा इसको ऐसे लिखते हैं। ऐसा क्यों? जो हमारी एवरेज लेंथ, एवरेज इज द एवरेज ऑफ ऑल दिस, लेकिन इसके अंदर एरर भी है। कितना एरर है? 0.01। सो व्हाट वी विल डू, मीन वैल्यू प्लस माइनस 0.01। प्लस माइनस हमने क्यों लगाया? क्योंकि हमने यहाँ पे सबका मॉड्यूलस लिया है, हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया है। एरर कितनी है? हमें एरर पता चल गया 0.01 है, लेकिन वो ज्यादा है या कम है, दैट वी डोंट नो। Whether it is more or less, that we don't know. So what we have written the mean plus minus error. Plus minus के बाद जो भी चीज लिखी जाएगी, that is the actual error of the question. Right? Second answer, हर एक क्वेश्चन के दो आंसर्स होंगे। सेकेंड आंसर इज 2.48 प्लस माइनस, अभी हमने क्या किया? रिलेटिव एरर निकाल लिया। रिलेटिव एरर को हमने परसेंटेज एरर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 0.01 जो एरर है कितने परसेंट बैठता है? तो when we calculated this into 100%, we found that it is 0.40. So अगर वैल्यू की टर्म्स में लिखेंगे तो ये आंसर होगा। अगर हमें आंसर परसेंटेज की टर्म्स में चाहिए तो आवर आंसर विल बी प्लस माइनस 0.40% meters. So this is our answer. That is how we write our answer. That is how we express our answer. We always give our answer in terms of the fractional error as well as in terms of the percentage error. These two will be the final correct answer of the calculation. I hope this is clear.